Okay. Okay, now tell me just an estimate. What is the distance between Lahore and Karachi? Just an estimate. Tell me the answer, your estimate in the chat. 1000 kilometer, 1000 kilometer. Okay. So 1000 kilometers. So it is a distance, but your answer in is in kilometers. The unit of distance is meter. But why are you answering in kilometers? Because it is a very large quantity. इसको आप अगर meters में आप इसको describe करेंगे तो it will be very difficult. 1000 into 1000. It will be difficult to remember. It will be difficult to write. So that is why we use unit prefixes for very small quantities or for very large quantities. So there are some unit prefixes. यहाँ पे जो किलो का आपने कहा ना 1000 किलोमीटर्स में जो किलो है that is a prefix. Prefix means something which comes before something. So ये जो हमारे prefixes हैं like kilo, micro, milli, these are all prefixes of the units because they are before the units. So we have many prefixes जो हमारे syllabus में हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं. जो pico है it is 10 minus 12, 10 power minus 12. It represents 10 to the power minus 12. Then nano represents 10 raised to the power minus 9. Micro represents 10 raised to the power minus 6. Milli represents 10 raised to the power minus 3. Centi 10 raised to the power minus 2. Deci represents 10 raised to the power minus 1. किलो रिप्रेजेंट्स 10 रेज़ टू द पावर 3. अब यहाँ पे पॉजिटिव पावर स्टार्ट हो गई है. मेगा रिप्रेजेंट्स 10 रेज़ टू द पावर 6. गीगा रिप्रेजेंट्स 10 रेज़ टू द पावर 9 एंड टेरा रिप्रेजेंट्स 10 रेज़ टू द पावर 12. ये ऑलमोस्ट जो आपका टेरा और पीको को छोड़ के बाकी सारे जो प्रीफिक्सेस थे दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर ओ लेवल सिलेबस. बट ओ लेवल्स में इनका बहुत कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता. But in A levels they are very important. Means if you are not able to convert the units using this table, you will suffer a lot, not only in the chapter 1 but in the complete A level syllabus. So ये आपने टेबल को याद रखना और इसको यूज करना. It is must for you. So symbol of these prefixes, for pico it is P, for nano it is N. माइक्रो के लिए म्यू यूज होता है विच इज अ ग्रीक लेटर. मिली के लिए स्मॉल एम. सेंटी के लिए सी. डेसी के लिए स्मॉल डी. किलो के लिए स्मॉल के. मेगा के लिए कैपिटल एम. गीगा के लिए कैपिटल जी एंड टेरा के लिए कैपिटल टी. अब ये जो पूरी की पूरी टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए. यू मस्ट नो कि कौन सा फैक्टर किस प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ दैट प्रीफिक्स. इसके अंदर अक्सर कंफ्यूजन होती है मिली में और मेगा में बिकॉज बोथ स्टार्ट्स विद एम. सो मिली जो है वो स्मॉल एम होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एंड मेगा इज अ लार्ज यूनिट. इट रिप्रेजेंट्स 10 टू द पावर 6 और इसके लिए कैपिटल एम यूज होता है. नाउ अब ये जो पूरी टेबल है ये आपको बता क्या रही है. ये आपको बता रही है कि ये जो आपके प्रीफिक्सेस के जो फैक्टर्स हैं, these factors and these symbols, they can be interchanged in any quantity. For example, 5 into 10 is to the power minus 3 meter. अब यहाँ पे जो 10 to the power minus 3 आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो हम इसकी जगह इसका सिंबल यूज कर सकते हैं, इसका प्रीफिक्स लिख सकते हैं. लाइक 10 to the power minus 3 represents milli. So what we can do 5 और इस 10 to the power minus 3 को हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कर देंगे millimeter. So it will be equal to millimeter. Similarly, if we have a measurement 0.25 kg and we want to convert it into grams, तो अब किलो को अगर हमने रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस करेंगे with its multiplying factor and that is 10 to the power 3. So we can write 0.25 into 10 to the power 3 gram.
अब यहाँ पे जो किलो था, इंस्टेड ऑफ दिस के वी हैव रिटन हियर 10⁻³ एंड ये हमारी कन्वर्जन हो गई है. इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल. अब इसको हम आगे फर्दर भी देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू यूजिंग दिस टेबल. So we have to do three tasks. Number one is converting from prefixed unit to non-prefixed unit. Then converting from non-prefixed to prefixed, and then converting from prefixed unit to other prefixed units. So let's start from the first one, converting from prefixed unit to non-prefixed unit. So let's suppose we have 50 millimeters and we have to convert it into non-prefixed unit. Milli इसके साथ लगा हुआ है, so it is a prefixed unit. हमने इसको non-prefixed में करना है, means मीटर में कन्वर्ट करना है. So उसके लिए भाई आपको जो प्रिंसिपल बताया है वो क्या है कि we can remove this m and instead of this m we can put the factor over here. So 50 into 10⁻³ meter. It's so simple. Similarly, 0.25 kilogram. Now, kilogram is a SI unit of mass, but it is the only unit, only base unit, only SI unit which is a prefixed unit. बाकी जितने भी units हैं SI units, they are non-prefixed. उनके साथ कोई prefix नहीं लगा होता, but mass के साथ किलो लगा होता है. SI unit of mass is kilogram, not the gram. बट हमने कर क्या रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम प्रीफिक्स यूनिट टू नॉन प्रीफिक्स यूनिट. तो इसका जो नॉन प्रीफिक्स्ड होगा दैट विल बी ग्राम. सो वी हैव टू कन्वर्ट 0.25 किलोग्राम इनटू ग्राम. तो हम इस किलो को यहाँ से रिमूव करेंगे 0.25 और इंस्टेड ऑफ दिस के वी विल पुट 10⁻³ विच इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर किलो और यहाँ पे हम फिर सिर्फ ग्राम लिख देंगे. तो ये आपकी कन्वर्जन हो गई है फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम. अच्छा, अब अगर आप और देखें इन दोनों एग्जांपल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं. वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर विद द फैक्टर. सो एक चीज तो आप ये रख सकते हैं कि द प्रीफिक्सेस एंड द फैक्टर्स कैन बी इंटरचेंज्ड. एक को रिमूव करके आप दूसरा इंसर्ट कर सकते हैं. और आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम प्रीफिक्स्ड यूनिट टू द नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद द फैक्टर. ये देखें 50 मिलीमीटर था, हमने उसको मिली के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली इधर 0.25 था, हमने इसको किलो के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इन दोनों में से आप कोई भी चीज याद रख सकते हैं. चीज एक ही है, वर्किंग होनी चाहिए, याद रखने के मेथड डिफरेंट है. नाउ कन्वर्टिंग फ्रॉम नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट टू प्रीफिक्स्ड यूनिट. अब हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम 130 ग्राम टू किलोग्राम लेट्स से. अब इसके लिए हमें अगर हम बिल्कुल बेसिक वाली चीज को देखें कि वी हैव टू इंटरचेंज समथिंग, तो उसके लिए यहाँ पे 10⁻³ होना चाहिए सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट टू किलोग्राम. सो हम क्या करेंगे 130 इंटू 10⁻³ एंड इफ वी मल्टीप्लाई तो हमें इसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पे 130 रहे. अभी कन्वर्जन नहीं हुई, अभी ये ग्राम में ही है. नाउ व्हाट यू कैन डू, नाउ यू हैव हियर 10⁻³. तो इस 10⁻³ को हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ दिस 10⁻³ यू कैन इंसर्ट द प्रीफिक्स हियर किलो. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 130 into 1 over 10⁻³ and instead of this 10⁻³ we will write here kilo और ये आपका बन जाएगा किलोग्राम. तो इसको आप अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 130 into 10⁻³ किलोग्राम. सो अब एक मेथड ये हो गया आपके पास कि आप ये एक स्टेप कर लें. Secondly, you can remember this fact that if you want to convert from non-prefixed unit to prefixed unit, so you have to divide the number with the factor. ये आपको डायरेक्ट ये वाला प्रोसीजर
ये वाला स्टेप है डायरेक्टली फ्रॉम दिस, ये वाला स्टेप जो सेंटर वाला स्टेप है ये ओमिट हो जाएगा, यू विल डायरेक्टली डिवाइड विद द फैक्टर और आपकी कन्वर्जन हो जाएगी. नाउ एनी क्वेश्चन सो फॉर? Now, converting from one prefix unit to another prefix unit. इतना तो आपने आई थिंक ओ लेवल्स में भी किया होगा. अब थोड़ा आगे जाते हैं. We have to convert from one prefix unit to another prefix unit. For example, if we want to convert from 9 kilopascals to megapascals, अब किस तरीके से इसको करेंगे? You will convert 9 kilopascals to megapascals. पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नॉन प्रीफिक्स एंड देन टू अनदर प्रीफिक्स्ड. सो 9 किलो पास्कल, 9 किलो पास्कल, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू पास्कल्स. तो उसके लिए क्या करेंगे? 9 किलो को यहां से हम रिमूव कर देते हैं, 10 टू द पावर 3 पास्कल्स. नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मेगा पास्कल्स आपको क्या करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 6, मेगा होता है 10 टू द पावर 6, तो आपको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 3 divided by 10 to the power 6 pascals, which will be equal to 9 into 10 raised to the power 6 minus 3 pascals, and that will be equal to 9 into 10 raised to the power 3, oh sorry, 3 minus 6 minus 3 megapascals. राइट जी. सो इट विल बी अ टू स्टेप प्रोसीजर. पहले आप उसको नॉन प्रीफिक्स यूनिट में कन्वर्ट करें एंड देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू अनदर प्रीफिक्स यूनिट. जी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम?